Assalamu alaikum. Welcome to the series of lectures brought to you by olevels.com. This is a project of RBF2. Today the topic that we have selected is algebra from O-level mathematics. The scheme of distribution for algebra is, first of all, we are going to cover indices, dealing with the form rules of indices, proceeding with the algebraic formula, उसके बाद expansion and factorization जो कि integral part है algebra का लाजमी करना है, और उसी से डील करते हुए कुछ मजीद मेथड्स लाइक ब्रेकिंग द मिड टर्म, राउंडिंग अप विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिसेस. Now, the word indices is the plural of index. Index के plural indices. इसका मतलब होता है पावर या एक्सपोनेंट, यानी वो नंबर जिसके जरिए से हम लोग एक दूसरे नंबर को मल्टीपल टाइम्स रेज करते हैं. फॉर एग्जांपल 2 raised to the power 3. ओवर हियर 3 क्या है हमारे लिए? इट इज द इंडेक्स फॉर द नंबर 2. यानी यहाँ जो नंबर 2 लिखा हुआ है इस 2 की पावर है 3. इस नंबर को हम लोग बेस कहते हैं. So this is the base, that is the power. The alternate name for power again is index, exponent. अच्छा. Proceeding further, this is the general form for writing, that is x raised to the power y. In algebra we are not dealing particularly with numbers. हमारा काम ज़्यादातर किससे कंसर्न होता है? Variables और letters से. तो सबसे पहले हम लोगों को again moving on towards the algebra side of indices. रूल्स हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होते हैं सेम बेस से, यानी इंडिसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं. उन रूल्स में भी हमने कुछ क्लासिफिकेशन कर दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रोसीडिंग विद सेम बेस, यानी जो भी हमारे पास केस अभी आने वाला है वो सेम बेस है. जो भी आपको पता है वो नंबर जिसके ऊपर पावर लगाई जाए दैट नंबर इज कॉल्ड द बेस, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल बेस है. सो ओवर हियर वी हैव a raised to the power m multiplied by a raised to the power n. The rule says whenever you are dealing with such a situation, आपको क्या करना है? आपने powers add करनी है. Whenever you have multiplication, first point, second point, the bases are same. इसी तरह से हम लोग अभी इसकी एग्जांपल देख सकते हैं. For example, we have 5 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 4. दोनों में हमारे पास 5 क्या है? Same base. The base is same. पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. Why? Because we are doing multiplication. Like we have over here, bases same, powers will be added. Same base का दूसरा रूल, a raised to the power m divided by a raised to the power n. जब bases same होते हैं and we are performing division, then we are supposed to subtract the powers. Power subtract करना very simple. 4 to the power 4 divided by 4 raised to the power 2. 4 minus 2. Proceeding further, हमारे पास जो थर्ड रूल होता है that is about power of power. That is कि अगर आपके पास एक बेस है जिसके ऊपर कोई पावर है and it is enclosed by a bracket and there is another power, तो फिर उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? You are supposed to deal in this manner. That is आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ध्यान में रखना है this is the only case where you are supposed to multiply powers. इसके अलावा you are not going to find any rule over here जिसमें आप पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. या तो पावर्स ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं या कुछ नहीं किया जाता. लेकिन यहाँ पर इस रूल के तहत आप पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज वन एग्जांपल फॉर यू. 5 raised to the power 4 होल ब्रैकेट raised to the power 2. अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसमें आप पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं. 4 into 2 8. तो ये वाहिद रूल है जिसमें आप पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट few rules deal with different bases. Suppose अगर आपके bases different हो, you are not dealing with same bases, a raised to the power m into b raised to the power m. Important point to note here is आपने bases तो different कर दिए, लेकिन powers आपने same रखी. यानी ज़हन में क्या रखना है? जब भी आप इस रूल की तरफ जाएंगे तो important क्या है? पावर सेम होनी चाहिए. पहले जितने भी हमने अभी डील किया उसमें पावर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. पावर कैन बी सेम, पावर कैन बी डिफरेंट. बट हियर आपके पास बेसिस डिफरेंट अगर हैं तो पावर सेम
समझना लास्ट में, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ इंडिसेस। ऐसा भी सिनेरियो आपके पास आता है, देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, पावर दोनों पे अगर आपके पास सेम मौजूद है, द पावर इज सेम, यू आर सपोज्ड टू टेक द पावर एज अ होल, पूरे पर पावर लगा देनी है इंडिविजुअल से हटाकर, ना ए पे ना बी पे, बल्कि ओवरऑल पर एक पावर एम आपने प्लेस कर दी। ए और बी के साथ क्या करना है, ए और बी के साथ वही ऑपरेशन होगा जो यहाँ साइन दिया हुआ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 6। ऐसे देखा जाए तो 2 पावर 6 सॉल्व करना जरा मुश्किल है, 5 पावर 6 सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन इस रूल के तहत आपको क्या पता चल गया, इट गिव्स यू 10 raised to the power 6, और 10s की पावर तो सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। हाउ, जितनी पावर है आप अपने इसमें जीरोस का इजाफा कर देते हैं। यही चीज हम लोग डिवीजन के उसमें भी देख सकते हैं। इफ द बेसिस आर डिफरेंट, अगेन बेसिस डिफरेंट, मगर आगे बढ़ने की जरूरी क्या है, पावर्स मस्ट बी सेम। पावर सेम नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। पावर आपने कॉमन कर दी एंड देन यू टुक द रेशियो, बिकॉज़ डिवीजन मींस रेशियो। रेशियो ले लिया। वन एग्जांपल फॉर यू, 3 raised to the power 3 divided by 4 raised to the power 3 gives you 3/4 whole power 3। ये रूल्स ठीक है, these are the rules of indices। इनको किस तरह से अप्लाई करना है फॉर ग्रेटर डिटेल एंड हाउ द क्वेश्चंस आर सेट इन द पेपर, हम लोग उसको देखेंगे अवेलेबल इंस्टीट्यूट एट क्वेश्चन के बाद। यहाँ पर वी आर जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कवरेज ऑफ द कोर्स। इसी को आगे लेकर चलते हैं। तो द नेक्स्ट रूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रूल दैट यू कैन सी, एनी नंबर अदर देन 0 व्हेन इट इज रेज्ड टू द पावर 0, कोई भी नंबर 0 के अलावा अगर उस पे पावर 0 लगा दी जाए, देन यू आर गोइंग टू गेट 1। इसकी एग्जांपल 5 raised to the power 0 is equal to 1। लेट्स लुक एट सम अदर वे। इससे किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं दैट दिस इज ट्रू। सपोज 2 raised to the power 2 raised to the power 2 is being divided by again 2 raised to the power 2। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स, देयर आर टू पॉसिबल मेथड्स। फर्स्ट मेथड आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 2 raised to the power 2 divided by 2 raised to the power 2 cancel and gives you 1 देता है, सिंपल है। लेकिन अगर हम जो सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम है एंड यू आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, तो आपने क्या करना होता है, यू आर सपोज्ड टू subtract the powers। जब भी बेसिस सेम है डिवीजन, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है। अगर आप पावर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ, वो है यू आर गेटिंग 2 raised to the power 0। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिकंसाइल दीस टू फैक्ट्स। अब एक आंसर 1 दे रहा है, दूसरा आंसर 2 power 0 दे रहा है, तो ये दोनों को बराबर होने के लिए क्या जरूरी है, दैट 2 power 0 and 2 power 1 both must be equivalent, must be equal, यानी any number other than 0 when it is raised to the power 0 is equal to 1। Next rule of index is dealing with fractional power, negative powers। यानी अगर किसी भी नंबर के ऊपर एक नेगेटिव पावर, किसी नंबर के ऊपर, किसी बेस के ऊपर यू हैव अ नेगेटिव पावर और आपको उस पावर को पॉजिटिव बनाना है, यू वांट टू मेक दैट पावर पॉजिटिव, तो आगे कैसे बढ़ना है, यू आर सपोज्ड टू टेक द रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल लेते क्या होगा, नंबर तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, पावर का साइन चेंज होता है। दैट इज जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पेरेटिव टू रिमेंबर कि आप रेसिप्रोकल लेंगे, नंबर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, लेकिन पावर अपना साइन तब्दील करेगा। दिस इज व्हाट दिस रूल टेल्स यू। यानी अगर एक पॉजिटिव पावर है, फॉर एग्जांपल 4 raised to the power 3, ये एक सिंपल बेस, उस पे पावर 3 है, 4 power 3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इट बिकम्स 1 divided by 4, लेकिन 4 की पावर पहले +3 थी, नाउ इट बिकम्स -3। तो दिस इज व्हाट दिस रूल टेल्स यू, और इसको हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम पॉजिटिव इंडिसेस टू नेगेटिव इंडिसेस। द लास्ट रूल ऑफ इंडिसेस डील्स विद फ्रैक्शनल पावर्स। यानी अगर आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक फ्रैक्शनल पावर है, बाय फ्रैक्शनल पावर व्हाट आई मीन दैट इज एक रेशनल नंबर, यानी देयर इज अ न्यूमरेटर, देयर इज अ डिनोमिनेटर, तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो उसमें जो न्यूमरेटर होता है तो वही चीज़ है जो
अब तक आप देखते आ रहे हैं, जो आपके पास एक सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठा हुआ है पावर का, यानी नंबर बड़ा हो जाता है, किसी भी नंबर में पावर डाला तो इट बिकम्स लार्ज, वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट इज देयर इन योर माइंड। लेकिन जो पावर डिनोमिनेटर में, व्हाट डज दैट पावर? इट्स लाइक टेकिंग द रूट ऑफ दैट नंबर, इट इज जस्ट लाइक रिड्यूसिंग द नंबर। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शनल पावर है तो द न्यूमरेटर इज सपोज्ड टू increase the variable, whereas the denominator that is present in the rational power is supposed to take the root, that is reduce the number। तो इसको सॉल्व करने का क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल we have 2 raised to the power 5 upon 3, यानी 2 की पावर क्या है? 5 upon 3। अब 5 upon 3 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? you place a radical sign, स्क्वायर रूट वाला साइन जो होता है ना वो लगाएंगे, but this is not supposed to be square root। why? The reason being simple, very simple। रीजन क्या है कि 5 के नीचे 3 लिखा है, पावर के डिनोमिनेटर में 3 है, तो यानी जो रूट लेना है वो आपने कौन सा रूट लेना है? थर्ड रूट इज कॉल्ड क्यूब रूट, और पावर जो न्यूमरेटर में 5 वो आपने सिंपली 2 के ऊपर लगा दिया, सो इट कैन बी राउंडेड अप एज रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 32, 2 raised to the power 5 is 32। Let's take an example to further clarify this question। Suppose we have a raised to the power 0.6। अब अभी मैंने आपको एक चीज कही थी, फ्रैक्शनल पावर। Where is the fraction over here? हमें तो यहाँ एक पावर नजर आ रही है 0.6 लिखी हुई, so where is the fraction? Fraction is in over here, this is decimal। So आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इट कैन बी गिवन एज डेसिमल एज वेल। दोनों चीजों के लिए आप जो रूल अप्लाई करेंगे दैट वुड बी द 7th रूल ऑफ इंडेक्स, दैट इज डीलिंग विद फ्रैक्शनल इंडिसेस। आप इसको लिख सकते हैं a raised to the power 0.6, a raised to the power 0.6 is equal to a raised to the power 6 upon 10। why? because 0.6 को जब आप कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, you get 6 upon 10। You can further simplify it as 3 and 5। तो a के ऊपर पावर्स क्या बची हमारे पास? It is a raised to the power 3/5। तो हम लोग इसको यूं भी लिख के छोड़ सकते हैं, the other method being रूट का साइन आपने यूज किया, और जो भी डिनोमिनेटर में पावर है, you bring it out and write it over here। यानी we are supposed to find the 5th root of this variable a, and यहाँ पे जो आपके पास न्यूमरेटर में पावर थी, we are simply going to raise the variable to that power, यानी a cube whole 5th root of a cube you are supposed to find, यानी a raised to the power 0.6 means a की cube आपको करनी है and you are supposed to take the 5th। Next topic is dealing with algebraic formula। सबसे पहले यहाँ पर अलजेब्रा में हाउ डू वी डील विद फॉर्मूला, उससे पहले वी शुड नो सम कॉमन टर्म्स, थोड़ा सा एक पता होना चाहिए। व्हेन यू आर गिवन एनी टर्म, फॉर एग्जांपल 9x², जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो यहाँ 9 का मतलब क्या है? इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। x का मतलब क्या है? इट्स कॉल्ड वेरिएबल। और जैसे कि अभी बताया था, जो पावर होती है इट कैन बी कॉल्ड अ पावर, इट कैन बी कॉल्ड एक्सपोनेंट, can be called index। algebraic formula को सॉल्व करने के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं। some of them are written over here, a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square। ये यूज होता है जब भी हम लोगों को एक्सपेंशन यानी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है किसी algebraic formula की, या फिर उसको फैक्टराइज करना होता है। there are other methods involved as well, यानी taking common factor, breaking the middle term, उनको हम लोग आगे इसी लेक्चर के कोर्स में we are going to deal with them as well। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? whenever you are going to perform the operation of cancellation, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है अलजेब्रा के सॉल्यूशन के दौरान, you should make sure कि आपने पूरी तरह से फैक्टराइज कर लिया अपने एक्सप्रेशन को before proceeding with cancellation। ये एक छोटी एग्जांपल आपके लिए रखी है just to show you what do I mean by that। Over here we have
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसकी रूट इसकी डिनोमिनेटर में भी है गॉट x माइनस वाई होल स्क्वायर। सो देखने में तो एक सिंपल सा अलजेब्राइक फॉर्मूला है, दैट इज रेशनल फंक्शन, दैट इज अ फ्रैक्शन। इसकी कैंसिलेशन में भी बाय सम मिस्टेक आप कर सकते हैं, x माइनस वाई ऊपर से नीचे से कैंसिल कर दिए, कुछ पावर्स छोड़ दी आपने, दैट वुड बी ऑब्वियसली रॉन्ग। जरूरत किस बात की है, यू हैव टू टेक अ लुक, क्या ये एक टर्म है, इज दिस वन टर्म? बाय वन टर्म आई मीन क्या पूरा का पूरा मल्टीपल फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर्स बने हुए हैं, जो कि नहीं है। x स्क्वायर इज अ सेपरेट टर्म, y स्क्वायर इज अ सेपरेट टर्म, ये दोनों अलग टर्म्स हैं। तो हाउ डू वी डील विद इट? वी आर सपोज्ड टू फैक्टराइज इट फर्स्ट, यानी अलजेब्राइक फॉर्मूला में डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, बिकॉज़ अलजेब्राइक फॉर्मूला इज सच अ वास्ट फील्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी सिंगल पॉइंट। जो सबसे बेसिक important rule, it's always doing the factorization. This can be factorized using the formula that I just showed you, even it is written on the screen, the last one. X square minus y square can be factorized into x minus y into x plus y divided by x minus y whole square. अब आपके पास this whole fraction, algebraic fraction is completely factorized. अब जब चूंकि factorization पूरी हो चुकी है, you can proceed with cancellation. आप देख सकते हैं x minus y term in the numerator and x minus y whole square term in the denominator, they are same. तो अब आप इनको कैंसिल कर सकते हैं. You are left with x minus y in the denominator and you are left with x plus y in the numerator. और यही काम अगर हम लोग बगैर फैक्टराइज किए करते हैं तो फिर obviously we would be making a huge mistake. Another point to note while dealing with algebraic formula in general is to make sure you are using the correct signs. बहुत मिस्टेक होती है अक्सर हम लोग से प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करने में, दैट इज अ कॉमन एरर और ये अक्सर होता है। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि कभी भी कोई काम करना है तो फिर साइंस का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इसमें हम लोग सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ओवर हियर वी हैव द सब्जेक्ट के, वी विल ट्राई टू मेक h एज अ सब्जेक्ट। इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहली चीज जो नजर आती हुई है कि देयर आर मोर देन वन h प्रेजेंट, h एक से ज्यादा मौजूद है, तो ये नहीं किया जा सकता कि बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए ताकि एक h बचे, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको जब सब्जेक्ट बनाना है तो इसका मतलब ये है जिस चीज को आप सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, दैट थिंग शुड बी लेफ्ट अलोन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल टू साइन। इक्वल टू के एक तरफ से अकेला वो वेरिएबल बचना चाहिए, इट शुड नॉट बी हैविंग एनी अदर सेम वेरिएबल ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू साइन। तो अगर हम इसमें ये काम करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो हाउ डू वी प्रोसीड विद दैट? अगेन टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन लिया, ओवर हियर वी आर लेफ्ट विद 1 and 2 अपॉन 5। इसको रीअरेंज अब आप कर सकते हैं, दैट इज यू टेक दिस होल प्रोडक्ट इनटू द डिनोमिनेटर। Why? Because this thing is being multiplied with h, और इधर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर दैट वुड टर्न इनटू डिवीजन। तो आप इसको ये लिख सकते हैं और यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई एंड राइट इट एज 5k डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2k। अब ये कैसे आ गया? अचानक से बिल्कुल एक फ्रैक्शन लिखा हुआ था जो आपको नजर आ रहा है और ये कन्वर्ट हो गया इसमें। व्हाट वी हैव डन इज वेरी सिंपल, आपके डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर के टर्म के अंदर एक फ्रैक्शन मौजूद है, दैट इज 2k अपॉन 5। डिनोमिनेटर के अंदर एक फ्रैक्शन मौजूद है, तो उस फ्रैक्शन के साथ जब आप एलसीएम लेते हैं यू आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अलजेब्राइक फार्मूला की एप्लीकेशन से डील करती हैं। ये अक्सर इस तरह के सवाल हम लोगों को पेपर 1 में डील करने पड़ते हैं मैथमेटिक्स में, व्हेन वी आर नॉट अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर इन आवर क्लास। इन क्वेश्चंस को you can solve them easily by application of certain algebraic formula। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इन द लास्ट एग्जांपल we have got 60.5 squared minus 5.5 squared। अब 60 का स्क्वायर करना very easy, 5 का स्क्वायर करना again easy, but 60.5 का स्क्वायर and again 5.5 का स्क्वायर it's going to take some time to find it out directly by doing multiplication and then doing the subtraction। will take a long time, लेकिन यही चीज सॉल्व हो सकती है by the application of algebraic formula। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? Let's take a look।
60.5 square minus 5.5 square. So how to deal with it? हमारे पास तीन कॉमन फॉर्मूला है, वो है वी कैन सिंपली अप्लाई, बल्कि देख भी सकते हैं यहाँ एक टर्म पे स्क्वायर है, यहाँ पे दूसरी टर्म के ऊपर स्क्वायर. So what we are going to do, we are going to apply that formula a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So आप देख सकते हैं उसकी राइट हैंड साइड पर हमारे पास दो फैक्टर्स मौजूद हैं, टू फैक्टर्स. इसको भी अब हमें दो फैक्टर्स में ब्रेकअप करना है, दैट इज 60.5 minus 5.5 first bracket. The second one will become 60.5 plus 5.5. और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान there is multiplication. You can take a look at the top bracket. 60.5 में से 5.5 आप माइनस करें and you are going to get 55. Very simple. 60.5 में आप 5.5 प्लस करें you are going to get 66. So you are supposed to multiply 55 into 66. Is this easy or is this difficult? देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी है, but again the answer is directly in front of you. ठीक है, तो 55 को हम लिख सकते हैं 5 into 11, and similarly you can write 66 as 6 into 11. Any student of O level should know 11 का square हमारे पास 1 to 1, that is 121. The remaining terms will be 5 and 6. Product of 5 और 6 क्या होता है? It gives you 30. So 30 into 121 आप simple solve कर सकते हैं. That is 30 multiplied by 1 to 1. It's going to give you, the answer would be 3630. Simple as that. तो वही चीज अभी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके करते तो फिर पहले 60.5 का स्क्वायर, फिर 5.5 का स्क्वायर, फिर इनका डिफरेंस लंबा था. Algebra में हमारा काम आसान कर दिया. Again, just to remind you, algebra is a very vast field. So it's just a brief course that we are covering here. We are going to cover this course along with all the questions that we are going to face, some tricky questions, some smart cuts at O-level institute in Gulshan. So by no means this is a complete dealing with algebra. Algebra is too vast to cover in such a short span of time. Next topic that we have for you is expansion and factorization of algebraic expressions. Algebra होती नहीं है पूरी जब तक कि आपके पास expansion और factorization ना आ जाए. So what is expansion? Expansion means कि आप सारे factors खत्म कर दें, brackets खत्म कर दें, term को जितना simple करके लिख सकते हैं, plus minus sum solve करके, that's called expansion. और factorization exactly उसका reverse है. You try to take out common factors, you try to write it as फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट के अंदर कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट फैक्टराइज कर सकें. सो ओवर हियर वी हैव 2b into 5b minus 4q माइनस दूसरा ब्रैकेट 3b plus 2q होल स्क्वायर. इसको अगर हम फैक्टराइज एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया, जब भी व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अलजेब्रा, सामने आते ही क्वेश्चन में आपको ज़हन में लाना है आई हैव टू मेक श्योर कि मैं साइंस SIGN साइन उसके साथ सही डीलिंग करूँ. दैट इज वी हैव 2b as पॉजिटिव. तो जब 2b अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू होगा लाइक वी आर डूइंग ओवर हियर, तो 5b के साथ देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू. व्हाई? बिकॉज़ इट इज पॉजिटिव. बट फॉर 4q यू कैन टेक अ लुक एंड सी इट इज नेगेटिव. तो जब भी नेगेटिव आपके पास आता है आपको ख्याल रखना इस बात का, एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड चेंज द साइन. यही चीज अब हम उसके साथ कर सकते हैं 3b plus 2q. तो 3b plus 2q को एक्सपेंड करने का यू हैव गॉट टू मेथड्स. एक सिंपल मेथड, आप इसको ब्रेक डाउन करें 2 ब्रैकेट्स इनटू 2 ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद एक बार 3b से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें और एक बार 2q से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, एज वी हैव डन ओवर हियर. बट यू कैन फर्दर सिंपलीफाई इफ यू कैन रिकॉग्नाइज, दैट वुड बी एक्सीलेंट. आप देखते अगर इस बात को पहचानते दैट दिस इज सिमिलर टू this formula a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. If you can recognize this, then excellent. फिर तो आपने काम अपना आसान कर लिया. फिर तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप कर लेंगे इस वाले ब्रैकेट में और काम आसान. नहीं भी किया तो भी इतना मसला नहीं है, विद प्रैक्टिस यू कैन. लेकिन
एक छोटी सी बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज अ नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन वही मसला खड़ा करेगा। जितनी चीज आपने अंदर कैलकुलेट की थी, नाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म विद नेगेटिव। तो नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू आर गोइंग टू डू द सिंप्लीफिकेशन। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज अरेंजिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर। बाय लाइक टर्म्स मेरा क्या मतलब है, वो टर्म्स जिनकी वेरिएबल्स सेम हैं उनको साथ करें। If they are being added, add p. If they are being subtracted, do the subtraction. Like over here, we have got 10p square and minus 9p square. ये दोनों like terms हैं. We are going to give you positive p square. Similarly, we have minus 8p cube and minus 12p cube. They both are like terms. Why? Because the variable is the same. p cube over here, p cube over here. तो इनके साथ हम लोग plus minus operation easily कर सकते हैं. And we will get minus 20p. Last variable 4q square minus, there is no other 4q, we leave it as it is. Factorization, as I just told you, is the opposite of expansion. इसमें आपका purpose क्या होता है? It is the process of taking out a common factor so that the result will be expressed as a single term. Single term, ये बात मैंने पहले भी कही थी, term, single term. तो single term असल में क्या होता है? That all the variables should be in bracket and they should be in form of multiplication, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन को डील करने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स दे फेस सम प्रॉब्लम। सो इट कैन बी अगेन लाइक एनी अदर टॉपिक इन मैथमेटिक्स, अगर आप उसको सिस्टमेटिक लेके चलेंगे तो एक्सट्रीमली इजी, दैट टॉपिक बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ डीलिंग विद लॉजिक। अगर आपको उसकी लॉजिक क्लियर हो जाए तो फिर मसला ही नहीं। If you try to enter rapidly, आप अगर सोचे समझे दूसरी की कोशिश करेंगे, then it will become difficult for you. So, for you, we have made a small table to simplify the process of factorization. जाहिर सी बात है, as you proceed further, you won't be needing it. एक बार आपको practice हो जाती है, experience हो जाता है, you don't have to deal with it. लेकिन for those who are starting, beginning with this factorization step is going to help you a lot. तो जब भी आपके पास factorization का कोई क्वेश्चन आता है, just take a look. How many terms are there? In fact, before even coming to it, first try to find out a common factor. अगर आपके पास कुछ common factor निकल सकता है, then take it out. Take the common out. सबसे best तो वही होता है कि पहले कुछ common निकल जाए. So always when factorizing, आपके mind में पहली चीज क्या होनी चाहिए? Take common. First thing, take common. Next चीज आपके पास क्या होगी? You are going to check how many terms are present. 2 terms, 3 terms, or 4 terms. तो हर एक का step आपके पास मौजूद है। That is, if you've got 2 terms, in bracket, are they similar to which expression? आपने कौन सी जो expression पढ़े? You have seen a square minus b square. अगर वो दो terms break down हो सकती हैं a square minus b square में, तो आप apply करें. If no, then it cannot be factorized. When dealing with 3 terms, तो फिर आपके पास जो है डबल ऑप्शन आता है, that is, are they similar to a square plus 2ab plus b square या फिर a square minus 2ab plus b square। यानी 3 टर्म्स में आपने ये फॉर्मूला चेक करना है। अप्लाई हो रहा है, एक्सीलेंट। आप पूरी ब्रैकेट में उसको इनक्लोज कर सकते हैं a plus b होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये फैक्टराइजेशन मिल सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, a minus b होल स्क्वायर, ये दूसरी फैक्टराइजेशन। लेकिन 3 टर्म्स के केस में एक और पॉसिबिलिटी है, दैट इज ब्रेकिंग द मिड टर्म। वी विल डील विद इट आफ्टरवर्ड्स। फोर्थ, अगर 4 टर्म्स में व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपने रीअरेंज करके देखना है, एंड इफ इट इज पॉसिबल तो फिर आप उसको सिंपलीफाई कर लें। सो व्हाट इज दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग द मिड टर्म? ये फैक्टराइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रूल है जिसके जरिए आप फैक्टराइजेशन को अचीव कर सकते हैं। सो व्हाट यू डू इन दिस मेथड, अगेन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे, दिस होल प्रोसेस इज वेरी इजी, कोई मसला ही नहीं होता है। तो लेट्स टेक अ लुक विद द एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल के साथ समझना इस स्टेप्स को काफी आसान करता है। सपोज you are supposed to factorize this expression. आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले रीअरेंज करना है। पहले चेक करना है क्या ये अरेंज्ड फॉर्म में है, अगर है ठीक है, नहीं है तो रीअरेंज करें। क्या फॉर्म है जो हमें डालनी होती है, we are supposed to break it
a variable with the say power 2 should be on one end. एक कोने पे कौन सा वेरिएबल होना चाहिए जिसकी पावर 2 है, and at the other end we should be having a constant term. At the other end we should be having a constant term. इसके कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं, we'll deal with it later at the institute. अभी फिलहाल we are just dealing with this simple example. तो आप पहला काम क्या करेंगे, you are going to rearrange, आप इसको rearrange करेंगे. Rearrange क्योंकि ये एग्जाम्पल है, no problem. Proceed to the next step. अगला स्टेप क्या है, आप वेरिएबल के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. In this case the coefficient of variable is 1, so the answer will not change, answer will remain 16. Don't look at this side, forget it. For the time being, don't consider this side. अब 16 के आपको क्या करनी है, जो आंसर आएगा इस केस में, यानी कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आपने परफॉर्म किया, तो उसके बाद आपके पास जो आंसर है आपको उसे फैक्टराइज करना है. यू गोइंग टू फाइंड इट्स फैक्टर्स. फैक्टर आपने फाइंड किए, अब आपका काम क्या है, यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ पेयर. एक ऐसा पेयर आपने निकालना है जो कि आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में 16 दे और प्लस या माइनस करके इट गिव्स यू 15. Over here there is no other than 1 and 16. 1 और 16 को आप मल्टीप्लाई करें तो 15, आपके पास 16 आता है और इनका डिफरेंस लें यू गेट 15. अब इस बात को और से देखना होता है कि 15 पॉजिटिव लाना है या नेगेटिव लाना है. Since we are supposed to make it negative, we are supposed to make it minus 15. Therefore, the factors should be that should replace minus 15a must be minus 16a plus. अब अगर minus 16a और प्लस से आप लिखेंगे तो फिर minus 15 के बराबर भी होते हैं और ये 16 के फैक्टर्स भी हैं, यानी इनका प्रोडक्ट 16 होता है और इनका डिफरेंस यस इस केस में डिफरेंस 15 के बराबर है. अब जब आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, once you replace it होएगा, अब आपके पास आराम से ब्रैकेट्स बन जाएंगे, कॉमन निकल जाएगा और आप सॉल्व करने के पोजीशन में होंगे. So this was just a brief introduction for you when you are dealing with expansion and factorization of algebraic form. One of the most important application is quadratic equation. Quadratic equation आपके पास एग्जाम में obviously as a problem आती है, problem statement के form. That is, they give you a problem and you are supposed to form a quadratic equation. The equation can be some other type as well. तो आपको ज़्यादातर जो मिलती है it is quadratic. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है. वी आर नॉट डीलिंग विद दैट एनालिसिस बिफोर. क्या तरीका है हमारे पास एग्जाम्स के क्वेश्चन को किस तरह हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेकर आते हैं, इट्स अ लेंथी टॉपिक फॉर सम अदर टाइम. अभी वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद द मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे देयर आर 4 मेथड्स. देयर आर 4 मेथड्स. द कॉमन 3 वी आर गोइंग टू शो यू हियर. फर्स्ट वन बीइंग factorization. The first method is factorization. As we have just explained to you before, factorization के केस में आपके पास 2 टर्म भी एक्सप्रेशन हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, it can be 4 टर्म. आपको वही रूल्स अप्लाई करके फैक्टराइज करना है एंड सॉल्व इट. ये मेथड आपके पास इजीली एप्लीकेबल है किस पेपर में, पेपर 1 में, बिकॉज इन दिस मेथड यू डोंट हैव टू यूज अ कैलकुलेटर, आराम से हो सकता है ये सब. लेकिन अगर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आपके पास पेपर 2 में आता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. अगर वो फैक्टराइज नहीं होता तो फिर आपको क्या करना होगा, you are left with 2 options. Either you apply completing the square method, completing the square, ये दूसरा मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. Either you apply this method or you deal with the next one. The one that I prefer is this method. The reason being कि इस फॉर्मूले को, this quadratic formula which is written in front of you here, इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमने यूज किया था completing the square method. तो ये रिडंडेंसी है, यूजलेस हो जाएगा कि हम लोग बार-बार completing the square से यहाँ तक पहुंचे और फिर आंसर लेकर आए. ये ज़्यादा बेहतर है कि हम इस फॉर्मूले को एक ही दफ़ा के लिए अपने ज़हन में बिठा दें. इस फॉर्मूले से सॉल्व करना बहुत आसान है, बट इफ़ यू आर हैविंग अ कैलकुलेटर है देन यू कैन इजीली फाइंड स्क्वायर रूट्स. नहीं है तो इसका एक ही मतलब है, यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 और पेपर 1 में इट इज नेसेसरी टू डू फैक्टराइजेशन.
ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, नो डाउट अबाउट इट। सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे जिनकी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी भी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट अगर आपके पास पेपर 1 के क्वेश्चन है तो उनमें फिर स्क्वायर करना, फिर स्क्वायर रूट करना तो मुश्किल होता है विदाउट कैलकुलेटर। इन पेपर 2 आई वुड रेकमेंड कि आप इसी फॉर्मूले को यूज करें। यूज करना बहुत सिंपल है। यू शुड just find out what's the value of A, what's the value of B, what's the value of C. After finding these values out, you write them and plug them in the, put them, substitute them in this formula, and the rest is for the calculator, और आपके पास आंसर आ जाएगा। So keep this in mind that this method is always going to give you the result. This method will always give you the result provided उस quadratic equation की रूट्स एग्जिस्ट करती है। अगर रूट्स हैं तो ये लाजमी आंसर देगा, चाहे आप उसे फैक्टराइज कर सकते हो या फैक्टराइज नहीं कर सकते। इन बोथ केसेस इट्स गोइंग टू गिव यू द आंसर। अगर रूट्स ही नहीं है देन दिस मेथड फेल्स। अच्छा, the fourth method for solving quadratic equation is by using graphs. ग्राफ्स हमारा एक बाद का टॉपिक है मैथ्स के लेक्चर में। यू कैन विजिट olevels.com and find it out in the section related to O level mathematics। वहाँ पर आपको ग्राफ टॉपिक मिल जाएगा। Over there you can refer how to solve quadratic equations using graphical method. Right now we are not going to deal with that method. अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं the final topic is simultaneous equations। अब simultaneous equation होता क्या है? ये नाम simultaneous का मतलब है साथ साथ चलने वाली इक्वेशन। असल में होता क्या है? ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हम लोग जो डील करते हैं O-level में वो बेसिकली 2 होता है, 2 वेरिएबल क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपके पास 2 वेरिएबल्स यानी 2 अननोन्स हैं। 2 अननोन्स का मतलब आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए। अगर 2 इक्वेशंस होंगी तभी वो 2 अननोन सॉल्व होंगे, वरना नहीं। तो ये तरीका होता है इक्वेशन को जज करने का। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट one equation x plus y, x plus 2y is equal to 19. The other equation 3x minus y is equal to -2. अच्छा, जरा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ है मेरे लिए, that is कि जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, रेयरली ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप इसको सॉल्व करें। ऐसा कम होता है। पेपर में क्या होता है, they give you again just like quadratic equation, they give you a problem। उस प्रॉब्लम को आपको ट्रांसलेट करना होता है in terms of mathematical expression that requires practice, which we will do at the institute। तो फिर आपके पास क्या है? How many methods are there for solving simultaneous equation? There are 3 common methods. We'll deal with 2 of them, और जो 4th method है that is again graphical। Graphical हम लोग अगले टॉपिक के लिए छोड़ देंगे। तो जो 3 methods हैं उनमें से first 2 are called substitution and elimination। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे इसका नाम बता रहा है, इसमें आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है, और जैसे दूसरा नाम आपको बताता है एलिमिनेशन, वी हैव टू डू सम कैंसिलेशन वगैरह। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन। अगेन मैथ्स बहुत लॉजिकल है। अगर आप स्टेप बाय चलेंगे योर टास्क बिकम्स एक्सट्रीमली इजी। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ जॉट डाउन कर दिए गए पॉइंट्स, ट्राई टू फॉलो दीस पॉइंट्स। आप 2-3 इक्वेशंस के लिए अप्लाई करें इस स्टेप्स को, सीरीज ऑफ स्टेप्स को, आपको आगे हमेशा के लिए ज़हन में बैठ जाएगा। देन यू वोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कॉन्शियसली। आराम से आपके दिमाग में ये पॉइंट्स बैठे हुए होंगे, आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सिम्पलेक्स इक्वेशन वेरी इजीली। बल्कि एक और बात ध्यान में रखनी है, द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज यूज्ड ओवर हियर, एक्सप्लेन ओवर हियर, ये आपके पास सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर सॉल्विंग सिम्पलेक्स इक्वेशन। बल्कि इनफैक्ट एडिशनल मैथ्स के भी स्टूडेंट्स इस मेथड को यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा। कमिंग फर्दर, क्या तरीका है आपके पास इसको सॉल्व करने का? आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू रीअरेंज वन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ रीअरेंज करने से क्या होता है, आपको रीअरेंज इस तरह से करना है इन 2 में से कोई एक इक्वेशन को, सच है कि कोई एक वेरिएबल जो आपका दिल जा रहा है, जिस वेरिएबल आप उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दें। लाइक ओवर हियर वी हैव डन x, वी हैव मेड x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, 3y को दूसरी तरफ ले आए, x को सब्जेक्ट बना दिया। यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। पहला स्टेप क्या है, आप सब्जेक्ट चेंज करें, आप एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएं। ये स्टेप हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, आपने जिस इक्वेशन को यूज नहीं किया था, आप उस इक्वेशन में इस वेरिएबल की जगह ये वैल्यू डाल दें।
minus 5y था, हमारे पास सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू -1. इन प्लेस ऑफ x we will put this value of x 5 minus 3y. ये वैल्यू यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट कर दी. अगेन जैसा नाम है इसका सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ वो स्टेप अप्लाई होता है, दैट इज इन द सेकंड स्टेप. ये काम जब आपने किया, अब आपके पास इस पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल रह गया. यू आर लेफ्ट विद जस्ट वन वेरिएबल. जब भी आपके पास इक्वेशन में एक वेरिएबल रह जाता है, यू कैन इजीली सॉल्व दैट इक्वेशन. सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है y. y का आंसर आ गया. लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है फाइंड द आंसर फॉर x. x निकालने के लिए आपके पास जो शुरू की दो इक्वेशंस गिवन थी, वहां आप y की वैल्यू पुट करके x का आंसर निकाल सकते हैं. तो दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. पहला स्टेप रीअरेंज करना, एक वेरिएबल यूज करना. दूसरा स्टेप सब्स्टिट्यूट कर देना उस इक्वेशन में जिसे यूज नहीं किया. थर्ड स्टेप एक वेरिएबल का आंसर, फोर्थ स्टेप दूसरे वेरिएबल का आंसर. सो इन 4 स्टेप्स यू विल फिनिश अप योर क्वेश्चन ऑफ simultaneous equation. The next method is elimination. Probably the last for us as well, क्योंकि हम तीसरे मेथड को दूसरे सेक्शन में डील करेंगे. एलिमिनेशन मेथड एज द नेम इंप्लाइज, इसमें हमें करनी होती है कुछ एलिमिनेशन, कैंसिलेशन. अगेन कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, इफ यू फॉलो देम तो फिर ये मेथड बहुत आसान हो सकता है. पहला स्टेप, आपको क्या करना है, एक वेरिएबल चूज करना, कोई सा, या तो x या y, कोई सा. जैसे अगर कोई और लेटर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल p and q, आप कोई और लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो आप उसको चूज करें. अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल वी आर चूजिंग ओवर हियर y. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, जबकि दूसरी इक्वेशन में द कोफिशिएंट इज 5. आई एम नॉट लुकिंग एट द साइंस राइट नाउ, साइंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें. तो अगर कैंसिलेशन करनी है तो इसके लिए क्या जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि दोनों के कोफिशिएंट्स सेम हो. द कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल. कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए आपने क्या करना है, सब करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप एलसीएम का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काम को जरा सिंपल रखते हैं. वो क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उससे दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, जो दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. पहला काम क्या था, वेरिएबल सेलेक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, दैट्स इट. जो ही आपने सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो आपकी दोनों इक्वेशन थोड़ा सा तब्दील हो जाएंगी, एंड द टू इक्वेशंस बिकम 5x + 15y = 25. ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी. और 6x - 15y = -3, ये हमारी दूसरी इक्वेशन वही जो मॉडिफाई होकर आई है. मॉडिफाई क्यों, क्योंकि पहली इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था और दूसरी इक्वेशन को हमने 3 से. अब आप देख सकते हैं चूंकि आपने y चुना था, अब हमारे पास क्या है, इस y का कोफिशिएंट और इस y का कोफिशिएंट, दे आर सेम. नेक्स्ट स्टेप आपको क्या देखना होता है, साइंस. अगर साइंस पॉजिटिव है तो आपको सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है. इस केस में ऐसा नहीं है, साइंस आर डिफरेंट. तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, 15y × 15y विल कैंसिल. इसका भी साइन प्लस है पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, यू आर गोइंग टू ऐड देम टुगेदर. 25 और 3 साइंस डिफरेंट है, यू विल सब्ट्रैक्ट. आंसर आपके पास 11 x = 22. दिस इज योर सेकंड स्टेप. और इससे आपके पास x का आंसर आता है. इस आंसर को आप ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी भी एक से दो में से आप पुट कर दें, x = 2 and you will get y = 1. The third method that is part of your course is the method of matrix. The method is using matrix. That is how to solve simultaneous equation. You will use matrix to solve simultaneous equation. Again, that is a part of your course, but for a later time you can again visit OAlevels.com mathematics section, matrices, और वहाँ आप देख सकते हैं how to solve simultaneous equation using this method. Fourth वाला graphical, that will be again in a different section related to O-level maths, and that wraps up our course for algebra.